Welcome to the class. Today we are going to discuss few more terms related to radioactivity. First is decay constant. Decay constant, lambda. Basically, lambda को अगर हम define करते हैं तो it is defined as lambda is defined as the reciprocal of the time in which the amount of the sample remains 36.8% of the initial sample. कैसे आएगा? Let us see to that. So basically, if lambda is equal to 1 by t, so put in the equation as we know, n is equal to n naught e की power minus lambda t. Put in that particular formula, n is equal to n naught e raised to the power lambda की जगह रख दिया 1 by t multiplied by t. Okay, now this is n naught e की power minus 1. n is equal to n naught divided by e, and this is n naught divided by 2.783 I think approximately होता होगा. ठीक है, 8683 जो भी ये वैल्यू है 2.7 अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं, 78 अप्रोक्सीमेटली हमने ले लिया, 2.736 है शायद, जो भी है. ठीक है, तो हमने ये ले लिया और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास आता है 0.386 टाइम्स एन नॉट, जिसको हम यहाँ से बेटा लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 38.6% ऑफ एन नॉट. ये हमने यहाँ पर लिखा. So basically it is the reciprocal of the time, is decay constant is the reciprocal of the time. हाँ, तो दोबारा से बता दें एक बार. The amount of the sample left is 38.6% of initial amount of the sample. वो जो टाइम है उसको हम कहते हैं reciprocal of that time is called decay constant, right? तो reciprocal of that time in which amount of sample left 38.6% of n naught is called decay constant. तो ये यहाँ पर इसकी definition. Now we are going to discuss with the first topic half life of the sample. Basically नाम से ही पता चल रहा है half life of the sample जितने टाइम में आधा हो जाएगा, means sample will reduce. It is the time in which the sample will reduced to n naught by 2, means n is equal to n naught by 2, और वो टाइम उसको हम कहेंगे हाफ लाइफ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं t हाफ से. टाइम t is equal to t half in which the sample reduces to half of its value. तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट n is equal to n naught e की पावर माइनस लैम्डा t. सो दिस इज n एंड n naught की वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास बनेगा n naught by 2 that is equal to n naught e की पावर माइनस लैम्डा multiplied by t half, that is t half, right? It's a symbol. So eliminating n naught from both sides, we are left with 1 by 2 is equal to minus e की पावर माइनस लैम्डा t 1 by 2, और रेसिप्रोकल हम करेंगे इसको तो that 2 will be equal to e की पावर प्लस लैम्डा t 1 by 2, right? तो यहाँ से टेकिंग log of both sides, so इसको ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल log of 2 will be equal to lambda t 1 by 2 times log of e. Log e base e is 1, log e base e is 1, तो ये आपके पास बनेगा lambda t half natural log of 2, that is converted to 10 base 2.303 log base 10 2. इसकी वैल्यू को अगर हम लिखेंगे 03 into 0.3010, तो ये आपके पास आएगा 0.698 अप्रोक्सीमेटली. ये आपके पास 0.693 आपके पास ये अप्रोक्सीमेटली आएगा. तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया t half. So t half will be equal to 0.693 divided by this lambda. This is the definition, this is the formula to calculate t half. तो dear students, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो t half है means half life of the substance
is reciprocal to disintegration constant and it does not depend on amount of the sample present in the particular sample. Amount of sample पर डिपेंड नहीं करता है, it is reciprocal to lambda. यहाँ पर हमने ये देखा है. Now one more overview of this particular topic is on the screen a graph is shown. और ये ग्राफ कैसे आएगा, क्या ये ग्राफ हमें रिप्रेजेंट क्या शो करता है, वो हम अभी देखते हैं. लेट अस कंसीडर इट. बेसिकली अमाउंट ऑफ द सैंपल लेफ्ट विद हाफ लाइफ. फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना बचेगा, सेकंड हाफ लाइफ में कितना सैंपल बचेगा, थर्ड हाफ लाइफ में कितना सैंपल बचेगा एंड सो ऑन. और nth हाफ लाइफ पर सैंपल कितना बचेगा या कंप्लीटली डिके हो जाएगा. तो वो हमने यहाँ पर बताया है. So let us first draw the conclusion. उसके बाद हम ग्राफ की बात करते हैं. फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करते हैं. मींस n is equal to 1. ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ लाइफ n is equal to 1. तो यहाँ पर आपके पास जो है जो सैंपल है वो आपके पास n0/2 बचेगा, राइट. ड्यूरिंग n is equal to 2 सेकेंड हाफ लाइफ की बात करते हैं. तो जो सैंपल है आपके पास कितना बचेगा, वो इस पर्टिकुलर का n/2 बचेगा. मींस n0/2 का भाई फर्स्ट हाफ लाइफ पे कितना प्रेजेंट था, n0 था, उसका हाफ हो गया. अब हमारे पास सैंपल ये है n0/2. सेकेंड हाफ लाइफ पे n0/2 का हाफ बचेगा. मींस n0/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. तो ये आपके पास जो बनेगा n0/2 की पावर 2 दैट इज n0/4 बचेगा. गॉट इट. उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड केस में n is equal to 3 की बात करें, तो आपके पास जो n होगा वो n होगा बेसिकली आपके पास 1/2 हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर सैंपल लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैंपल रिमेन. तो ये आपके पास आया बेटा n0 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 3 दैट इज n0 डिवाइडेड बाय 8. n is equal to 4 की बात करें तो अमाउंट ऑफ सैंपल बचेगा 1/2 टाइम्स इसका, जो ये बचा हुआ है इसका भी आधा हो जाएगा. तो ये आपके पास बनेगा n0/8. ये बना आपके पास इसकी पावर 2 की पावर 4. ये बना n0/16, राइट, एंड सो ऑन. इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. इसका मतलब अगर हम nth हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ सैंपल जो होगा that will be n is equal to n0 over 2 raised to the power n. The same pattern यहाँ पर हम फॉलो कर सकते हैं. n is equal to n0 डिवाइड पर देखिए, जब यहाँ पर 4 था तो 2 की पावर 4 था, 3 है तो 2 की पावर 3 है, 2 है तो 2 की पावर 2 है, 1 है तो 2 की पावर 1 है. तो इसी तरह अगर n है तो 2 की पावर n होगा, जिसको हम लिख सकते हैं n is equal to n0 into 1 over 2 की पावर n. A standard result that relates amount of the sample remained during decay after nth half life, right. तो यहाँ पर ये आपको एक कंक्लूजन मिलेगा. बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट वी कैन ड्रॉ द इन्फरेंस ऑन द ग्राफ लाइक एट t half. फर्स्ट t half देखिएगा, टाइम t is equal to 0. इनिशियली टोटल अमाउंट ऑफ द सैंपल जो कंप्लीट है आपके पास वो कितना है, n0 है. टाइम t is equal to 0 पर n0 है, इसलिए ये कर्व यहाँ पर टच करता है. उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो कर्व जो होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा. मींस जो डिके होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा, रैपिडली होगा. तो ये टाइम फर्स्ट हाफ लाइफ पे n0/2 हमने दिखाया हुआ है, सेकंड हाफ लाइफ पे n0/4, थर्ड हाफ लाइफ पे n0/8, फोर्थ हाफ लाइफ पे n0/16 एंड सो ऑन. तो इनिशियली अमाउंट जो प्रेजेंट था वो रैपिडली एक्सपोनेंशियल डिके करता है, और उसके बाद जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सैंपल कम बचता जाता है, हमने बताया था एक्टिविटी के केस में कि जो डिके रेट है वो स्लो हो जाएगा अगर अमाउंट सैंपल का कम होता है. तो यहाँ ज्यादा अमाउंट था तो बहुत फास्ट डिके था, धीरे धीरे सैंपल घटता चला गया, डिके होता चला गया, तो जो रेट है डिके होने का वो भी कम होता चला गया. करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो धीरे धीरे डिके हो रहा है. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन.